गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दें। अंग्रेजी कर देते हैं। Question was asked in Parliament as to whether the government is going to compensate 700 farmers who passed away, who were martyred. And government answered that we have no record of any of these people. We have no record of these 700 people. As it turns out, we did some homework and we have 403 people who the government of Punjab has compensated 5 lakh rupees each and has given jobs to. 100 and how many people have given jobs? 152 have been given a job. We also have another list, which is this one, where we have 100 names of other people not in Punjab, from other states, and there is a third list which is public information of names, addresses, phone numbers, which can easily be verified. So this list exists. But the government insists on saying that such a list does not exist. What is the purpose? These people have died as a result of the agitation. We are not talking about billions of dollars, thousands of crores of rupees. We are talking about minimum compensation for the sacrifice they have made. Prime Minister himself has said that he has made a mistake. He has apologized to the nation. But as a result of that mistake, 700 people have died. Now you're lying about their names. Why? Why don't you have the decency to give them what is their due? The government of India should pay their compensation and help these families. Thank you, sir. We'll begin with A9, Siddharth. Okay. सर आपने कंपनसेशन की बात कही है, इसके अलावा जो पहले दिन घटी है चर्चा में हुई, उससे भी आपसे आस्था है। और दूसरी जो मांग है किसानों की वो ये कि रीजनल प्रायोरिटी MSP पर, उस पर भी सरकार अभी तक चुप है। विपक्ष किस तरीके से इस बात को रखना? मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं। जो भी करना होता है वो कर देते हैं, मगर जब किसान को जरूरत होती है, मजदूर को जरूरत होती है, तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब इनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, तो है ही नहीं। तो किसानों की मांगे हैं। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर ये मिनिमम कॉम्पनसेशन जो है, ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है। तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहाँ पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप मतलब फोन नंबर भी है। प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें तो नाम भी बता देता हूँ, 2-3, तेज कौर, गुरजंत सिंह, दाना सिंह, दर्शन सिंह। फोन कर ले कि ये है या नहीं है, पता लग जाएगा। Thank you, sir. We'll Look, frankly, the Punjab government is not responsible for the deaths of these people. It was not our responsibility. However, we have given them support, 5 lakhs each. Why? Because we understand that they're going through a difficult time, right?
We have also given 152 of them jobs. We intend to give the bulk of them jobs. So we have already acted on it. Frankly, it is not our responsibility. It is not our mistake that has caused this. It is the Prime Minister's personal mistake which he has accepted. So why does he not have the dignity to turn around and say, okay, 700 people have died, I will compensate? What is the problem? Official figure in Gujarat is 10,000. Right? We have sent our workers to all the villages in Gujarat. We've asked in every specific village how many people have died. Do you know what the number comes out to be? 3 lakh people have died in Gujarat. That's the fact. Right? So you simply do not want to accept that people have died. When it is not their fault. It is not the fault of the people who died in corona. कि उनको आपने सिलेंडर नहीं दिया, आपने उनको अस्पताल में पलंग नहीं दिया, उनकी गलती तो नहीं थी. किसानों को आपने स्वयं कहा कि मैंने गलत कानून लागू कर दिया. आप कह रहे हो कि हाँ मेरी गलती थी, फिर आप कह रहे हो कोई भरा ही नहीं. This is not the way the Prime Minister of India should be behaving. This is a very unpleasant, immoral, and cowardly way to behave. Thank you, sir. I'll come to you. Supriya from Ashton. So I have two questions. One being that on the compensation. In Parliament itself, you had yourself to move the motion for offering condolences to the farmers who died. Then the session also commented about the bill. And but so far there was no response from the government. Do you think that after the compensation? Because what I'm hearing is that the current vaccines are not necessarily working with this variant. So we have to be careful on how we are thinking about vaccinating, and also get ready to accept that we might have to vaccinate everybody else again for this variant with a new booster. Kumar Vikrant from TV9. राहुल जी, जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है इस वक्त में, अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में एमएसपी दे पाना मुश्किल है, कंपनसेशन दे पाना मुश्किल है. इस पर आपकी क्या है? पैसा किसके पास नहीं है? पैसा किसानों के पास नहीं है. सरकार के पास क्यों नहीं है पैसा? मतलब लाखों करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से ले रहे हैं, क्या वो मतलब आपको मिल रहा है क्या? आपको तो नहीं मिल रहा, किसानों को तो नहीं मिल रहा, तो कहाँ जा रहा है वो? ऐसी तो कोई बात नहीं है. और दूसरी बात ये है कि जब भी गरीबों की बात उठती है, किसानों की, मजदूरों की, तो आप कहते पैसा नहीं. और जब आपके मतलब 3-4 क्रोनी कैपिटलिस्ट पूंजीपति फ्रेंड्स मित्रों की बात उठती है, तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती. Thank you, sir. We'll have Ashish from ABP. Can we also have the print also if you don't mind? Yes, ma'am. We will have. राहुल जी, जो जर्नलिस्टों को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आपको पता होगा लोकसभा 1, राज्यसभा 1, कल जर्नलिस्टों ने इसको लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया. व्हाट इज योर व्यू इन दिस? क्योंकि इसमें हमें लोकसभा स्पीकर की तरफ से एश्योरेंस भी मिला था कि इस बार उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किया. No, I think the press should have access certainly to Parliament. I think it's important. वो अलाउ नहीं होगा. That's pretty clear कि नहीं हो रहा है, और वो शायद होगा भी नहीं. But न्यू इंडिया है, so get used to it for a while. Arun Kumar Singh. राहुल जी, ये जो आप किसान जिनकी मौत हुई है, जिनको कंपनसेशन देने की बात आप कर रहे थे, आज ही बात हो रही थी पार्लियामेंट में, जो कृषि मंत्रालय के अधिकारी थे और मंत्री भी थे, वो कह रहे थे इन लोगों की मौत पुलिस की गोली या लाठी या हमारी व्यवस्था की वजह से नहीं हुई थी, इनकी नेचुरल डेथ हुई है या जैसे भी हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है. ये टेक्निकल पॉइंट उठा रहे हैं, पहली बात, पहला सवाल. और दूसरी बात यह है कि डीएपी की, यूरिया की, ये जो बुआई का सीजन पूरे देश में चल रहा है, लेकिन आज की शॉर्टेज के कई खबरें इस तरह से आ रही हैं, तो क्या सिर्फ किसानों के मुद्दे के अलावा किसानों की जरूरतों को लेकर के भी सरकार संजीदा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा
कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी क्यों मांगी? किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे थे? माफ़ी इसलिए मांग रहे थे कि उन्होंने ये जो 3 कानून लागू करे वो गलत थे। 3 कानून लागू किए, इसीलिए तो किसान बाहर निकले थे। तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो किसानों की मृत्यु हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और इसलिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मान लो आप कहते हो कि ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तब भी हिंदुस्तान के 700 किसानों की मृत्यु हुई है। मैंने आपको अभी कहा कि पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मगर हमने कर दिया, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार अगर 700 लोगों को 25 लाख 30 लाख रुपए देना चाहे तो ये बड़ी बात नहीं है। ये मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे ये दे देना चाहिए, मगर नहीं देना चाहते। किसानों की जो दूसरी इश्यूज हैं, हम तो पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ करेगी। हम दबाव ज़रूर डालेंगे, बट इंटेंशन उनका सही है। लखीमपुर खीरी में भी आपकी सरकारों ने 1.5 करोड़ रुपए प्रति किसान जो मारे गए थे उनको दिया आपने। आखिर सरकार क्यों छुपाना चाहती है? सरकार के मन में आपको क्या ऐसा है कि अगर ये आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं, क्या मन में उसके है कि छुपा लीजिए आंकड़ा और जनता को मत बताइए, किसानों को मत बताइए? और आपके पास जो रिपोर्ट है, क्या आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे या सरकार को आप देंगे? अहंकार है, एरोगेंस है। सोचते हैं कि हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो कोई सुनने की जरूरत नहीं किसी की। और जो मैंने कहा, ह्यूमैनिटी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री उन परिवारों के बारे में सोचें, उनके बच्चों के बारे में सोचें, उनके एजुकेशन के बारे में सोचें, उनके हेल्थ केयर के बारे में सोचें, तो 1 मिनट में वो ये काम कर देंगे। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं। और मैं यहाँ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखिए, हमने जो करना था हमने कर दिया, मगर मुझे लगता है कि ये कम है। मुझे लगता है कि 700 लोगों को अगर आपने 5 लाख रुपए दिए तो वो कम है, और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर हमने दे दिया और हम नौकरी भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये कर देना चाहिए। सर, उनके पास कांग्रेस रिपोर्ट नहीं है, आप क्या रिपोर्ट